So good morning everyone. The chapter today which we are going to revise is separation of substance, that is chapter 5th of your NCERT book. Okay, so let's begin with that, and yeah, let's go. Separation of substance. Separation of substance. As you all have seen that separation means what? Separation means what? To separate out. हमें क्या करना है? उसको अलग अलग करना है. तो there must be something, no, which we have to separate. ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि जिसे हम separate कर सके. तो ऐसा क्या होना चाहिए जिसे हम separate कर सकते हैं? तो very simple. If we'll take a mixture, we'll take a mixture. Okay. If we'll take mixture, then in that mixture there are more than one kind of substance. Okay, what is that? There are more than one kind of substance. Okay, there are more than one kind of substance which we have to separate it out. तो मिक्सचर में क्या होता है? एक से ज्यादा तरीके के क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है. लाइक सिंपल वन which you know very well is that mixture namkeen, okay, in which peanut is there, in which triangle shape some kind of thing is there. Then there must be some dry fruit in that. Then spices are there. Then coriander, in some mixture you will get coriander. Spices are, yes, obviously spices are there. So different kind of substance are being present where in that mixture. ठीक है, नॉर्मल एक मैं नमकीन की बात नहीं कर रही हूँ, वो हल्दीराम भुजिया की आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज वो सारे क्या हैं, एक ही तरह के दिखते हैं. बट इन मिक्सचर, इन अ बोल, ट्राइंगल, स्क्वायर, peanut, okay, so these different kind of shapes are there. So that this is what a mixture. This is what we can say as a mixture. या mixture अगर आप किसी दो या तीन सब्सटेंस को मिलाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा जिसका फिक्स्ड प्रपोर्शन ना हो, फिक्स्ड अमाउंट ना हो. लाइक when you are making a house, so while making it, what we require? Sand. Then what? Cement we require. Then we require a small gravel, okay, plus water. So this is what called, ये सारे मिला के क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे, एक पेस्ट बनाएंगे जिससे आप क्या करेंगे? जिससे क्या करेंगे? आप अपना घर बनाएंगे. तो दिस इज व्हाट, when we will combine all this, they all together will be called as what? Mixture. उस टाइम उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे. Like cooking of tehri, or we can say poha. You all have eaten that. So when you are making poha, or if you have eaten, then you can say in poha what we are adding. First of all, we need what? Chuda. Okay. Second is what we require is the favorite thing, potato. Then onion, if you want to add onion. Then if you want to add as per your choice, if you are adding what we can say mumfali, okay, peanut, or you are adding mutter if you are getting. If you're not getting peanut, that what we are adding? Mutter. Then mustard seed we are adding in the starting. Then curry leaves we are adding. So many things we are adding together to form a what? To form poha, which is there, which is already mentioned in your book, poha. And you all have eaten also. So today I'm giving different example related to what? Food items. Many of them, see, mouth still filled with water. Many of them are here whose mouth has filled with water. Now mixture, namkeen I have given the example, poha I have given the example. Then if you are making halwa, okay, if you are making halwa, then what constituent we are adding? Sugar we are adding, then ghee we are adding. Then if you are making with flour or besan, then besan you are adding, okay. Afterward we are adding dry fruit. तो ड्राई फ्रूट अगर जिसके घर थोड़ा होगा वो थोड़ा डालेगा, जिसके घर ज्यादा होगा वो ज्यादा डालेगा. तो मिक्सचर में जो भी चीजें हम लेते हैं उसका अमाउंट क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता. इफ यू आर मेकिंग सपोज हलवा, हलवा यू आर मेकिंग, ओके,
सो अगर आपके घर ज्यादा घी है या आप ज्यादा घी में डालना खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा घी डालते हैं. अगर किसी को कम घी में खाना बनाना पसंद है तो वो कम घी डालेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, घी या जो भी चीज आप बना रहे हैं उसका अमाउंट क्या नहीं होता, इसमें फिक्स नहीं होता. और क्या कर सकते हैं, क्या हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यस, वी कैन सेपरेट आउट मिक्सचर, क्योंकि सब्सटेंस का साइज अलग होता है, शेप अलग होगा, कलर अलग होगा, और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी. इसलिए हम क्या करेंगे, मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं. व्हाई एंड हाउ डू वी सेपरेट आउट मिक्सचर? बिकॉज मिक्सचर आर फॉर्म्ड ऑफ different kind of what constituent, yeah, we can say substances, and all the substances have their own identity. सबकी अपनी आइडेंटिटी है ना. अगर आप क्लास में आते हैं, ठीक है, तो आप एक तरह से क्या है, मिक्सचर है. व्हाई वी आर सेइंग मिक्सचर? आप अलग अलग घरों से आते हैं. ठीक है, इफ अ क्लास इज हैविंग 40 स्टूडेंट, तो 40 बच्चे लगभग क्या है, सारे के सारे अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग कॉलोनीज से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं. ठीक है, तो वो आके क्या बना रहे हैं एक क्लास में? सपोज यू आर इन 6C और 6. Okay, so different sections are there. When all will combine together, what they will form? A mixture. तो उनको separate out कर सकते हैं ना भाई, तुम इस घर के हो, तुम उस घर के हो. तो it's easy for us to separate out mixture. How will separate mixture? On the basis of height, shape, size, color, physical property and chemical property के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. Like here I have made few shapes here. तो जो ट्राइंगल होगा हम क्या करेंगे, उसको ट्राइंगल को एक साथ रखेंगे. जो रेक्टेंगल होगा उसको क्या करेंगे, हम एक साइड रखेंगे. जो सर्कुलर होगा उसको क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे. तो बाय दिस वे और लाइक दिस वी कैन सेपरेट आउट मिक्सचर. ओके, इन इट्स प्योर फॉर्म. उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग में, ताकि वो प्योर फॉर्म में हो जाए. इज इट क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, separation of mixture, there are different ways or methods through which we can separate out what mixture. Let's begin with the first one, which is given very easy, centrifugation method, or we can say as a churning. Okay, you all have seen churning machine, or in normal language we can say mathni at your home. You all have seen, no? Yes or no? What we are doing with this round a round what rod kind of thing is there, in which here like this it is. Okay, and with this what we are making, either we are making what, lassi, or we are separating what, butter from curd, or butter from milk, or cream from milk we are separating out. तो ये milk is a what mixture, जिसमें क्या present होता है, milk as well as what, cream. और जब आप चर्न करते हैं मथनी से, या जो भी सेंट्रिफिकेशन मशीन से चर्न करते हैं, मशीन भी आता है इसको चर्न करने के लिए, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए. तो अगर उससे करेंगे तो क्या होगा, मिल्क विल रिमेन at the bottom and cream will start floating. जो हल्का होगा वो क्या होने लगेगा, float होने लगेगा. तो the lighter particle will float on what, milk is, we know that it is liquid in nature. या आप बात करें कर्ड की, तो कर्ड और किससे सेपरेट हो जाएगा, क्रीम से, या बटर विल सेपरेट आउट. ठीक है, तो कर्ड दही से क्या सेपरेट हो जाएगा, मक्खन निकालते हैं ना, मलाई से मक्खन को निकालना, तो फिर जो छाछ है वो नीचे रह जाता है. तो सेम प्रोसेस that is done with the help of a process called churning. CHURNING. वो कौन सा प्रोसेस है जिसे सेपरेट करते हैं? So the name of that process is what called churning. Okay, या इसे कहते हैं centrifugation. I'm writing here, and centrifugation. Okay, it's a typical word. For pronouncing it, what we have to do, छोटे छोटे पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर ले, centrifugation, like this, and 2-3 times if you will revise, you will come to know how to spell. Okay, centrifugation we used to say. So churning या centrifugation से हमने क्या किया, मिल्क या कर्ड में से, कर्ड एज अ मिक्सचर जो लिया था उसमें से लाइटर और हेवियर कंपोनेंट को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया. तो यहाँ किस बेसिस पे सेपरेशन हुआ, जो हल्का था वो ऊपर चला गया और जो भारी था वो क्या हो गया, नीचे सेटल डाउन हो गया. ठीक है, तो यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, चर्निंग का यहाँ पे क्या है, कैसे, किस बेसिस, क्या आधार है, कैसे हम चर्निंग करते हैं. तो जो हेवियर होता है पार्टिकल वो नीचे रहता है, जो लाइटर होता है वो क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है. नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट,
hand picking. Hand picking is the most what common, and we can say it's a manual method, just like centrifugation. Manual मतलब हाथ से करने वाला, and very lengthier process, very time taking process. Hand picking आपने देखा होगा घर में अपने, normally grains को mother या grandmother they used to clean it up with their hand. राइस खाने से पहले, चावल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको चुन लेते हैं, बुनते हैं, ताकि क्या हो, उसमें जो भी कीड़े वर्म्स हो या छोटे छोटे क्या हो कंकड़ हो, उसे हम क्या कर सके, manually means with our hand we can remove it easily. Okay, so separation of smaller particle which is present in the form of impurity, जो कि impurity की form में present है. impurity क्या होता है, जो प्योर नहीं है. जैसे राइस है तो राइस इज अ प्योर थिंग. व्हाई इट इज प्योर? बिकॉज वी नीड दैट, इट इज यूजफुल फॉर अस. ठीक है. और इम्प्योर क्या है? अब कीड़े मकोड़े तो हम खाते नहीं है, इसलिए उसको प्योर नहीं मानते. कंकड़ हम खाते नहीं है, इसलिए जो भी इम्प्योरिटीज है हम उसे क्या करते हैं, निकालते हैं. ठीक है. तो second process is what? The second process is hand picking, which is manually done. Manually means it is done with the help of what? Our hand. For cleaning of grains, generally we use that cleaning of grain. आमतौर पे हम grains को clean करने के लिए this method called hand picking we are using. Okay? Time taking process है hand picking process. मेथड को यूज करना टाइम लगता है चावल चुनने में. ऐसा नहीं है कि बस ऐसे देख लिया एंड रोबोट की तरह वो काम हो जाएगा. ओके. तो नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर हैंड पिकिंग इज व्हाट कॉल्ड थ्रेशिंग. नाउ थ्रेशिंग इज व्हाट? थ्रेशिंग, हु विल गिव द आंसर? थ्रेशिंग. ओके, यू ऑल हैव सीन क्रॉप्स. अनाज खेतों में देखा होगा. क्रॉप्स मतलब क्या होते हैं? व्हीट का क्रॉप है, राइस का क्रॉप है. ठीक है. किसी भी चीज को लार्ज स्केल पे, जब बड़े पैमाने पे कहीं ग्रो कराएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप कहेंगे. जैसे फूल लगाते हैं आप, एक गमले में लगाए, 2 गमले में लगाए, 3 गमले में लगाए, तो उसे हम क्या नहीं कहते? क्रॉप नहीं कहते. ठीक है. उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली गार्डनिंग. बट इफ यू विल डू ऑन अ लार्ज स्केल इन अ लार्ज एरिया, ओके, ऑफ इफ यू आर इन अ लार्ज फील्ड, तो उसे क्या कहेंगे? हम क्रॉप कहेंगे. ठीक है. अब उस क्रॉप को हम क्या करेंगे? सेपरेट आउट करेंगे ना. अगर उसमें मान लो ये पत्तियां हैं, ये क्रॉप्स हैं, गेहूं ऐसा या राइस मान लीजिए, दिस इज क्रॉप एंड दीज आर लीफ. ओके, अगेन दिस इज क्रॉप. तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इस क्रॉप को इसमें से सेपरेट आउट करना पड़ेगा ना. तो सेपरेशन ऑफ व्हाट? ग्रेन फ्रॉम स्टॉक. स्टॉक मतलब क्या होता है? ये जो ऐसा है डंडी की तरह जिसमें ये ग्रेन लगा हुआ है, उससे सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग. ओके, threshing. Okay, separation of stock from grain और separation of grain from stock. grain को क्या करेंगे? stock से separate out करेंगे, इससे अलग कर देंगे. grain अलग हो जाएगा और stock क्या हो जाएगा? अलग. भूसा अलग हो जाएगा और क्या अलग हो जाएगा? आपका अनाज अलग हो जाएगा. that process what called threshing. is it clear? तो इस प्रोसेस में बेस क्या है कि लाइटर कंपोनेंट जो है वो हेवियर कंपोनेंट से क्या हो गए? सेपरेट आउट. हेवियर कौन है? ग्रेन इज हेवियर. देन व्हाट? हस्क. आपके भूसा क्या होता है? काफी लाइट वेटेड होता है. तो फ्रॉम द हस्क और फ्रॉम द ग्रेन व्हाट वी आर सेपरेटिंग? वी आर सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन और ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय द प्रोसेस व्हाट कॉल्ड थ्रेशिंग. स्टॉक कट के किस चीज में चेंज हो जाएगा? हस्क में, भूसे में चेंज हो जाएगा. एंड दोज हु आर हैविंग कैटल दे नो वेरी वेल व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट हस्क. ओके, भूसे का क्या यूज है? you know very well. Kettles are what? Feeding that what? Husk. जैसे हम क्या खाते हैं? रोटी चावल खाते हैं ना, वैसे ही kettles क्या खाते हैं? भूसा खाते हैं. Next is winnowing. Now winnowing process क्या है? What is winnowing and what is required in winnowing process? The very important thing which is required for winnowing process is what? Air. Okay, एयर की हेल्प से हम क्या करते हैं? हेवियर कंपोनेंट को लाइटर कंपोनेंट से अलग कर देते हैं. लाइक इफ यू आर हैविंग मूंगफली, तो आप उसको भूनते हैं, उसके छिलके को आप क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है. ब्राउन वाला जो कवरिंग रहता है उसको आप क्या करते हैं? हटा देते हैं और सिर्फ जो अंदर बचता है आप उसको खाते हैं. तो फॉर रिमूविंग दैट व्हाट यू आर डूइंग? सिंपली यू आर ब्लोइंग एयर. if you are taking peanut in a bowl,
आप क्या करेंगे, ब्लो करेंगे, हवा फूकेंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा छिलका क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वो भी एक तरह का सिंपल क्या है, विनोइंग प्रोसेस है। जनरली विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, स्ट्रेनर और सीव, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सीव, क्या करते हैं हम, विनोइंग प्रोसेस करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हस्क को किससे सेपरेट आउट कर देंगे, किससे सेपरेट, ग्रेन से हम सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है, ताकि जो भी कुछ भी भूसा बचा हो आपके ग्रेन के साथ जो आ गया हो उसे हम क्या करें, सेपरेट आउट, क्लीन कर सके, ठीक है। तो दैट इज विनोइंग। थ्रेशिंग एंड विनोइंग वी आर सिंपली यूजिंग when we are farming, when we are doing farm, when we are having farm crops को लेके ही हम ज्यादातर क्या करते हैं, ये दोनों प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। थ्रेशिंग कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होंगे, क्रॉप होंगे। ऐसा नहीं कि घर में ही क्या करने लगे हम, थ्रेशिंग करने लगे जब हमारे पास क्रॉप ही ना हो तो, ठीक है। एंड विनोइंग वी कैन डू, बट ऑन अ लार्ज स्केल इट कैन बी डन फॉर व्हाट, फॉर सेपरेटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। भूसे से क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, ग्रेन्स को अलग करेंगे। यहां थ्रेशिंग प्रोसेस में हमने क्या किया, सिंपली ग्रेन को स्टॉक से अलग किया, ठीक है। अब इस ग्रेन में क्या प्रेजेंट है, हस्क प्रेजेंट है। अब इस हस्क को प्रॉपर ग्रेन से सेपरेट कैसे करेंगे, बाय विच प्रोसेस, विनोइंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? सेपरेटिंग ऑफ स्टॉक from grain or separating of grain from stalk is threshing, and separation of husk from grain is what called winnowing. Is it clear? Husk from grain is winnowing and stalk from grain is what called threshing. Is it clear? Move your head like this. All are sleeping or what? Yes. Be energetic. It seems that all are sleeping. Next is sieving. Sieving. Okay, let's begin with that. Sieving. We need a sieve for this method. Sieve means what? Chalni. You all have seen now, chalni. So first of all, for this process, we need a sieve. Now, this sieve is required for separation of what? For separation of which kind of substance is being separated by this? जिसके particle size क्या हो, काफी छोटे हो, वो they can be separated out easily with the help of what? Sieve. ठीक है, चलनी से क्या करते हैं हम, जनरली फ्लोर को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीव हम चालना शुरू करते हैं। जब फ्लोर को क्लीन करते हैं, फ्लोर मतलब आटा, दैट नॉट दैट फ्लोर, जमीन की बात नहीं कर रही हूँ, जमीन को भी क्या बोलते हैं, फर्श को फ्लोर बोलते हैं, FLOOR, दैट इज, दिस इज डिफरेंट। इसको फर्श बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर। क्या बोलेंगे, फ्लोर, फ्लोर। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? So what is the difference between that? एक फर्श है और एक क्या है, आटा। आटे को आप क्या करते हैं, सीव से क्लीन करते हैं, एंड आफ्टर क्लीनिंग विद दिस व्हाट विल गेट, जो चोकर होता है वो क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द क्लीन फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फ्लावर जैसे बोलते हैं नॉर्मल, हम फ्लोर फ्लोर करते हैं, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, फ्लावर। अब फ्लावर पे मत चले जाइएगा, इट्स कॉल्ड फ्लावर, ओके। तो क्या होता है, चोकर अलग हो जाता है, किस चीज से अलग हो जाएगा भाई, आटे से। तो हस्क, जनरली चोकर इज आल्सो व्हाट कॉल्ड हस्क, ठीक है, भूसी की तरह होता है, ठीक है। तो दैट इज बीइंग सेपरेटेड आउट फ्रॉम व्हाट, फ्लोर। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड सीविंग। इज इट क्लियर? तो जो कंपोनेंट साइज है वो बड़ा और एक क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो बड़ा होगा इट विल रिमेन ऑन द सीव, एंड द लाइटर पार्टिकल which is smaller in size will what, come down by what, by the help of the sieve. Next is this, I have explained, I think, sedimentation, decantation and filtration. Okay, this I have already explained, but let's do it once again. Sedimentation. For this we need a mixture. Sedimentation में हमें क्या लेना पड़ेगा, मिक्सचर। कैसा मिक्सचर लेने पड़ेगा, होमोजीनस और हेटेरोजीनस? Which kind of mixture will take for showing sedimentation? Which kind of mixture, homogeneous or heterogeneous?
हेट्रोजीनस। होमोजीनियस लेंगे तो सेटल ही नहीं होगा। चीनी पानी को एक बार आप घोल देंगे तो क्या वो नीचे फिर सेटल डाउन हो जाएगा शुगर? नो। ओके, सो हियर वी विल टेक वर्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर लिया है जो कि हेट्रोजीनियस, लाइक मड वाटर या सैंड वाटर। ठीक है, सैंड वाटर या मड वाटर, एज पर योर चॉइस। सो व्हाट वी विल डू इन दिस बीकर, वी विल पुट दैट मिक्सचर, दैट इज सैंड वाटर। तो क्या होगा? This is water. H2O is the formula of water. And what will happen if you have taken sand, then sand will settle down here. Okay? अब हमें मिक्सचर को क्या करना है? सेपरेट आउट करना है। तो सैंड एज इट इज हेवियर देन व्हाट? वाटर will what? Settle down at the bottom of this container or that beaker, and water used to float upon it. Water क्या करेगा? ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? सैंड के ऊपर। Now settling of the solid particle is what called sedimentation. आप ऐसा मिक्सचर लीजिए जिसमें एक हेवियर हो और एक लाइटर, मतलब मिक्सचर हेट्रोजीनियस होना चाहिए, जिसमें क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा, एज आई हैव एक्सप्लेन earlier also. What is sedimentation? Let me ask from you all, what is the definition of sedimentation? Because I have explained it many a times. Okay, now who will give the answer of sedimentation? Ma'am, Yes. ma'am, settling of insoluble substance in liquid. Yes, very good, very good. As I have said, settling of the solid particle or the insoluble particle, okay, is what called sedimentation. ऐसा particle जो insoluble है। insoluble यहाँ कौन है? sand. अगर soluble होता तो वो पानी के अंदर होता, लेकिन पानी क्या है? ऊपर है, और sand का है नीचे। तो settling of the solid particle or the impurities is what called sedimentation. Okay, now one more thing I have explained. Who will give the answer of that? Very important it was. Who will give the answer of that? Ma'am, क्या? In sedimentation, I have explained one point. Now see decantation. Okay, याद करिए तब तक शायद आ जाए। Decantation. Moving further is decantation. Now here मैम we have सॉल्यूशन बताई थी, सॉल्यूशन बताई थी सेडिमेंटेशन में। No. Okay, Ma'am, look at here. saturated or Now what we have to do, non-saturated? as this has been now settled down, अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, मूव नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा? सैंड विल सेटल डाउन। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस वाटर। तो क्या होगा? डिकंटेशन में इस वाटर को क्या करेंगे? दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। एंड लाइक दिस वी हैव सेपरेटेड आउट व्हाट? मिक्सचर ऑफ व्हाट? Mixture of sand and water. So what is going to be the definition of decantation? Who will give the answer of decantation? Ma'am, removal of water above settled mud. Ma'am, removal of water above settled mud. Yes. Removal of what? Removal of what we can say? Pure Ma'am, water. प्योर सब्सटेंस water. फ्रॉम द इम्प्योर वन इज व्हाट कॉल्ड डिकेंटेशन। जो प्योर चीजें हमने क्या कर लिया? उसको सेपरेट आउट कर लिया। जो इम्प्योरिटी थी वो तो सेटल डाउन हो चुकी है। ठीक है, जो सेटल हो जाएगा वो नीचे रहेगा, एंड द प्योर सब्सटेंस को क्या कर लेंगे? दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड डिकेंटेशन। ओके, व्हाट इज कॉल्ड दैट? डिकेंटेशन प्रोसेस। ओके, process. okay, now next process is what called? Evaporation. Who will give the answer for evaporation? It's very simple. Who will give? Ma'am, process of converting water to water vapor. And the process of conversion of water into water vapor is called evaporation. And anything else related to evaporation you want to say? Anything else? The process of ice into water. That is evaporation. Ice into water is evaporation. Who is this now? Ridiculous answer.
Ma'am, the conversion of water into water vapor is called evaporation. Water into water vapor is called evaporation. Okay. What I have, anything extra I have explained regarding evaporation? Evaporation don't have a fixed temperature. Ma'am, evaporation is also Yes, ma'am. तो बताइए, Yes, ma'am. क्या बताएंगे आप? This is a revision session is going on here. और आप उतना ही बताते हैं जितना बुक में प्रिंट है.